चीज़ को स्टार्ट करने से पहले उसके बारे में थोड़ा सा पता होना, ठीक है, लाइक वी कैन से अ सॉर्ट ऑफ समरी, ठीक है, लाइक कोई भी चैप्टर स्टार्ट करने से पहले अगर हमें उसकी ब्रीफ समरी का आइडिया हो जाए, दैट इज़ लाइक इंट्रोडक्शन और प्रीफेस, ठीक है. सो एज वी नो आवर कॉन्स्टिट्यूशन टू एज अ प्रीफेस, that is preamble. Okay, so similarly a preface is there to its to Wordsworth's lyrical ballads. Okay, lyrical means that is written in lyrics and ballads is in the form of narration. Okay, by William Wordsworth. Let's begin. So this is lyrical ballad published in 1798. Basically it had 4 editions. Okay, first one was without preface, then the another 3, those were like more we can say developed one. Okay, lyrical ballads with a few other poems is a collection of poems by William Wordsworth and Samuel Taylor Coleridge. Okay, Coleridge was his best friend, we can say. Okay, first published in 1798 and generally considered to have marked the beginning of the English romantic movement in literature. Okay, romantic movement started with the publication of lyrical ballads. Okay, let's move further. In 1787 he entered Cambridge University as we know, and while still a university student, और जिस टाइम वो यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट थे उस टाइम पे क्या किया, he went on a 3-month walking tour of France. ठीक है, पैदल यात्रा पे निकल गए थे वो फ्रांस के लिए. The Swiss Alps and Italy. The Swiss Alps is a mountain in Europe and Italy, and was greatly impressed by the beauty of landscape, and as he was a nature lover, so obviously he enjoyed the landscape there. Now let's discuss about the life of William Wordsworth. William Wordsworth was born in 1770 in a little town in the Lake District in the northwest of England. Okay, a second edition was published in 1800. First one we had discussed 1798 without the preface, it was published. Okay, second one was published in 1800 in which Wordsworth included additional poems and a preface. This you must remember for sure. Okay, इसमें preface था second वाले edition में, detailing the pairs अवॉर्ड पोइटिकल प्रिंसिपल. ठीक है, उसके अंदर जितनी भी जो है उसने मतलब अवॉर्ड होता है कि मतलब ओपनली बोलना किसी चीज़ को. ठीक है, उसने पोइटिक जो प्रिंसिपल्स होते हैं, सिद्धांत होते हैं, उनके बारे में ओपनली बताया कि भाई ये सब होना चाहिए. फॉर अनदर एडिशन पब्लिश्ड इन 1802. थर्ड एडिशन वॉज पब्लिश्ड इन 1802. Wordsworth added an appendix titled Poetic Diction. Diction as we know selection of words. ठीक है, and poetic means referring to poet, referring to poems. Okay, and which he expanded the ideas set forth in the preface. ठीक है, उसके बाद preface में सारे ideas add हो गए थे. Okay, the book became a landmark for English poetry. उसके बाद it became so popular. Lyrical ballads, preface वाला. Okay, most of the poems in 1798 edition were written by Wordsworth with Coleridge. ठीक है, इन दोनों ने मिलकर contribute किया था, contributing only 4 poems to the collection, including one of his famous works, The Rime of the Ancient Mariner. Remember this name. Okay. नेक्स्ट कम्स विलियम एंड कॉलरिज डिस्कस पॉलिटिकल इशूज़. ठीक है, उन्होंने राजनीति वगैरह काफ़ी बातें की हैं. रेड पढ़ा भी है, रोट लिखा भी है. एक्सचेंज थ्योरीज, एक दूसरे के साथ उन्होंने थ्योरीज भी एक्सचेंज की हैं ऑन पोइट्री से रिगार्डिंग, पोइट्री के रिगार्डिंग, एंड कमेंटेड ऑन ईच अदर्स वर्क. और उन्होंने एक दूसरे के पोइट्रीज को बताया भी है कि भाई किस तरीके से आपने लिखा है, अच्छा है या जो भी है. इन दिस पीरियड ऑफ इंटेंस क्रिएटिविटी दे प्रोड्यूस द लिरिकल बैलेड 1798 एंड अ कलेक्शन ऑफ, दिस इज अ कलेक्शन ऑफ पोएम्स. ठीक है, यू शुड नो व्हाट इज लिरिकल बैलेड, अ कलेक्शन ऑफ पोएम्स. ओके, द सेकेंड एडिशन कंटेन वर्ड्सवर्थ्स फेमस प्रीफेस. सेकेंड वाले में प्रीफेस ऐड हुआ था. फर्स्ट वन वॉज विदाउट द प्रीफेस. ओके, विच वॉज टू बिकम द मैनिफेस्टो ऑफ इंग्लिश रोमांटिसिज्म. ठीक है, मैनिफेस्टो होता है घोषणा पत्र, मतलब किसी चीज़ के लिए घोषणा पत्र होना. तो रोमांटिक एरा जो स्टार्ट हुआ था इंग्लिश लिटरेचर का, वो किसको माना जाता है? आफ्टर द प्रीफेस वॉज एडेड टू वर्ड्सवर्थ दिस फेमस आर्ट. ओके, और क्रिएटिविटी कैन से. लेट्स मूव फर्दर नाउ. द 3 मेन फिगर्स ऑफ what has become known as the Lake Schools were, ये 3 names है, read them out once. The Lake Poets, कौन थे? Lake Poets were a group of English poets who all lived in the Lake District of England. इंग्लैंड के लेक डिस्ट्रिक्ट में ये लोग रहते थे, यूके में. इन द फर्स्ट हाफ ऑफ द 19th century एज अ ग्रुप दे फॉलोड नो सिंगल स्कूल. एक स्कूल नहीं था उनका सिंगल. ठीक है, लाइक मेटाफिजिकल का जैसे सिंगल था ना, इनका सिंगल नहीं था. ऑफ थॉट और लिटरेरी प्रैक्टिस दे डन नोन. ठीक है, उस टाइम पे जाने वालों प्रैक्टिस में से सिर्फ एक स्कूल नहीं था उनका. दे प्रैक्टिस मल्टीपल. ओके, they were named only to be the uniformly disparaged by the, ये जो भी है, this is not that important. Okay, they are considered part of the romantic movement. ठीक है, उनको romantic movement का पार्ट माना जाता है. ओके, इन 1794 क्या हुआ था, उनके पब्लिश होने से पहले, लिरिकल बैलेड्स के पब्लिश होने से पहले, he went to live with his sister Dorothy. ठीक है, remember this name, in a small village Dorset. Okay, in the same year he met Samuel Taylor Coleridge. उसी ईयर में जिस टाइम वो डोरथी के पास रहने के लिए गए थे अपनी बहन के पास,
उसी टाइम इनको कॉलेज मिले थे, अ पोइट विद सिमिलर रेडिकल पॉलिटिकल एंड लिटरेरी व्यूज़, उनकी और उनके परसेप्शन सेम थे दोनों के। दिस फ्रेंडशिप हैड अ लास्टिंग इम्पैक्ट ऑन बोथ द पोइट्स, ठीक है, काफ़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग थी उनकी, सेम व्यूज़ थे, उस वजह से फिर उनकी फ्रेंडशिप वॉज सो डीप। ओके, लेट्स मूव फर्दर। When he finished his degree, he returned to France. वापस आ गए थे वो फ्रांस and became a passionate supporter of the democratic ideals of French Revolution. काफ़ी इंस्पायर्ड थे वो फ्रेंच रेवोल्यूशन से, okay? Where ideas of liberty, fraternity, justice, these all were demanded. Okay. Now comes the preface to lyrical ballads. Okay. What is there in this basically? Okay. बेसिकली इनका क्या था कि ये बहुत डाउन टू अर्थ थे, कौन, वर्ड्सवर्थ। ओके, तो इन्होंने नॉर्मल पीपल की लाइफ्स के ऊपर ही लिखा था, ज़्यादा हाई लेवल वाले पर्सन्स के ऊपर इन्होंने कोई वो नहीं किया था। ओके, सो इट वॉज रिटन ऑन द लाइक नॉर्मल पीपल्स लाइफ। ओके, प्राइमरी लॉज ऑफ ह्यूमन नेचर, नेचर से बहुत प्यार था इनको, ठीक है, यूजुअली वो उन्हीं से रिलेटेड जो अपने क्रिएशंस करते थे। प्राइमरली लॉज ऑफ ह्यूमन नेचर, लो एंड रस्टिक लाइफ, रस्टिक लाइफ होता है कॉमन पीपल की लाइफ या फिर रूरल कह लो, वेरी सिंपल। ओके, नॉट सो सोफिस्टिकेटेड। ओके, द लैंग्वेज ऑफ रस्टिक पीपल, कि वो किस तरीके से बोलते हैं, कैसी उनकी भाषा है, कंसेप्शन कैसी है पोइट की और पोइट्री की, मतलब कि अलग अलग व्यूज़ उन्होंने दिए थे अपने पोइट और पोइट्री के रिगार्डिंग, ठीक है। रिवोल्यूशनरी एंड डेमोक्रेटिक सेंटिमेंट, फीलिंग्स थी काफ़ी रेवोल्यूशनरी, मतलब एक तरीके से कह सकते हैं हम कि पेट्रोइटिक थे काफ़ी, ठीक है, वो फीलिंग्स थी उनके अंदर कि भाई मतलब देश के लिए कुछ कर गुजरने वाली, ठीक है, एज द बेसिक ऑफ हिज पोइटिक थ्योरी, ठीक है, ये इनका बेस था। लेट्स मूव फर्दर। वर्ड्सवर्थ एज अ पोइट, ठीक है, क्या खास बात थी उनकी। ओके, सो लेट्स मूव फर्दर। उनको एक अच्छा पोइट क्यों माना जाता है, ठीक है, वन ऑफ जायंट्स ऑफ इंग्लिश पोइट्री, ठीक है, काफ़ी महान माने जाते हैं इंग्लिश पोइट्री में ये। प्लेंटी ऑफ इन्फीरियर वर्क्स रिटन बाय हिम, बहुत सारे वर्क्स ऐसे थे जो उनके पॉपुलर नहीं हुए थे, ठीक है, मतलब बिफोर बिगनिंग ऑफ हिज पॉपुलैरिटी, उस टाइम तक उनके काफ़ी सारे वर्क्स ऐसे थे जिनको लोग जानते नहीं थे इतने अच्छे से, ठीक है। हिज हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस, काफ़ी अच्छी हिस्ट्री रही है उनके, बैकग्राउंड काफ़ी लाइक स्ट्रगल वी कैन से अ सॉर्ट ऑफ, ठीक है। हिज थ्योरीज ऑफ पोइट्री एंड रेवोल्यूशन ही इफेक्टेड, ठीक है, कि भाई वो पोइट्री किस तरीके से लिखते थे और रेवोल्यूशन में उनका क्या लाइक वी कैन से कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है, ठीक है, फ्रेंच रेवोल्यूशन में। एज अ पोइट ऑफ नेचर, एज वी नो ही इज़ अ नेचर लवर, तो काफ़ी अच्छा उनको पोइट ऑफ नेचर समझा जाता है। चाइल्डहुड का भी माना जाता है बिकॉज वो बेसिक थिंग्स पे बात करते हैं, ठीक है। एज अ पोइट ऑफ पॉट रिफ्लेक्शन, फिलोसॉफिकल थॉट, ठीक है, काफ़ी माइंडफुलनेस दिखाई है उन्होंने अपनी पोइट्रीज़ के थ्रू। हिज लिरिकल गिफ्ट, बहुत अच्छा लिखा है, ठीक है। लेट्स मूव फर्दर। नाउ कम्स 3 थिंग्स क्लियरली इमर्जेस फ्रॉम ऑफ हिज पोएम्स, ठीक है, इनकी पोएम में से कुछ चीज़ें जो हैं क्लियरली निकल कर बाहर आती हैं। पहली क्या है, ही लव टू बी अलोन, उनको अकेला रहना बड़ा पसंद था, ठीक है, नेवर फेल्ट लोनली इन नेचर, और जिस टाइम वो पर्यावरण में होते थे, नेचर में होते थे, ही नेवर फेल्ट अलोन, ठीक है, वो बहुत इंजॉय करते थे खुद की कंपनी को नेचर में रह के, ठीक है। सेकेंड चीज़ क्या थी, ही फेल्ट द प्रेजेंस ऑफ सम लिविंग स्पिरिट रियल दो अनसीन, ठीक है, उनको हर वक्त ऐसा लगता था कि लाइक कोई है, कोई सोल है, स्पिरिट है कुछ, लेकिन हालांकि वो चीज़ दिखती नहीं थी पर वो मानते थे उसको, ठीक है। थर्ड क्या था, हिज इंप्रेशंस ऑफ नेचर वर डिलाइटफुली फेमिलियर, ठीक है, मतलब कि जो उनकी छाप थी ना नेचर पे, लाइक छाप होती है, मतलब जो नेचर के प्रति उनका व्यू था, पॉइंट ऑफ व्यू था, दैट वाज डिलाइटफुली फेमिलियर, ठीक है, बहुत ज़्यादा उनको प्रकृति से प्रेम था, ठीक है। नेक्स्ट इज 1799 में क्या था, विलियम और डोरथी जो है ग्रासमेर में चले गए थे, लवलीस्ट विलेज था ये उस टाइम का, लेक डिस्ट्रिक्ट में। अ रीज़न दैट वर्ड्सवर्थ इमोर्टलाइज्ड इन हिज पोइट्री, अपनी पोइट्री में उसने काफ़ी उसको एक्सप्लेन किया है। ओके, लेट्स मूव फर्दर। नेक्स्ट कम कंसेप्ट ऑफ पोइट्री, ठीक है, पोइट्री क्या चीज़ है, ही इज सेइंग, ठीक है। वर्ड्सवर्थ बिलीव दैट इंट्यूशन क्या होता है, हमारी अंतरात्मा, ठीक है, तो वर्ड्सवर्थ को क्या लगता था कि जो हमारी अंतरात्मा होती है ना, मन होता है हमारा, नॉट रीज़न, हर चीज़ का कारण नहीं होता, ठीक है, रीज़न नहीं होता कि भाई पर्टिकुलरली क्या रीज़न है, शुड गाइड द पोइट, वो चीज़ पोइट को गाइड करती है कि भाई तुम पोइट्री जो है उसकी रचना करो, ठीक है। इंस्पिरेशन शुड कम फ्रॉम द डायरेक्ट एक्सपीरियंस ऑफ द सेंसेस, 5 सेंसेस होते हैं ना हमारी, लाइक टच, फील, ये सब, ठीक है, फील करना, टेस्ट करना, हियर करना, ये सब, ठीक है, 5 सेंसेस आर देयर बेसिकली, तो उनसे हमें इंस्पिरेशन मिलती है कि भाई अब हम पोएम लिखें, ठीक है। वर्ड्सवर्थ एक्सप्लॉइटेड स्पेशली द सेंसिबिलिटी ऑफ द आई एंड द ईयर, वो मानते हैं कि भाई उन्होंने इस चीज़ को समझा है कि भाई आई और ईयर के ऊपर ही केवल भरोसा नहीं करना होता, 5 सेंसेस के ऊपर हमें भरोसा रखना होता है, ठीक है। लेट्स मूव फर्दर। मैन इज़ एन एक्टिव पार्टिसिपेंट इन द नेचुरल वर्ल्ड, वी नो, ठीक है, कि भाई जो लोग होते हैं वही एक्टिव पार्टिसिपेंट होते हैं, वही उस टाइम मौजूद होते हैं कहाँ पे, नेचुरल वर्ल्ड में, ठीक है। नेचर इज समथिंग दैट इंक्लूड्स बोथ इन एनिमेट एंड ह्यूमन नेचर, ईच इज़ अ पार्ट ऑफ द सेम होल, ठीक है।
ह्यूमंस भी हैं, एनिमल्स भी हैं, वो सब पार्ट है इन सब का, ठीक है, नेचर का। नेचर कम्फर्ट्स मैन इन सोरो, कि भाई अगर कोई बंदा परेशान है, कोई इंसान को अगर किसी प्रकार का कोई दुख है, पीड़ा है, तो नेचर उसको कंफर्ट करता है, ठीक है, खुश हो जाता है नेचर में जाके। नेचर इज़ अ सोर्स ऑफ प्लेजर एंड जॉय, नेचर में जाके सब क्या है, खुशी महसूस करते हैं। ओके, नेचर टीचर्स मैन टू लव एंड टू एक्ट इन अ मोरल वे, नेचर क्या सिखाता है इंसान को कि भाई प्यार दिखाओ हर चीज़ के प्रति, ठीक है, एंड टू एक्ट इन अ मोरल वे, और एक अच्छे तरीके से जो है वेल वे में बिहेव करो। ओके,